Robinson, you must start now. Hello, am I audible clearly to everyone and visible also? Yes, sir. Yeah. I, Professor Robinson Paul, of EC Department, on behalf of BVM family, welcomes you all to this webinar, which we have titled Career Guidance and Learning Opportunity for Diploma Students. I request, before we start our session, kindly keep your mic on mute mode, such that whoever the expert speaks, all the students, all your friends can listen it carefully. કે તમારું માઇક જે છે ને એ તમે જોઈન થાવ તો બંધ રાખજો કે જેથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે તો એની ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય. The objective of this session is to help and guide the diploma student to pursue their dreams in the best path possible. And especially to fulfill the above objective, we have included few of the very important points in this webinar, like what is the future scope of the different branches, how to select the appropriate branch, because many students will be having in this time the diploma student can select any of the branches in which they are interested, so which branch will be helpful for them to select. Also, what are the skills required to excel in engineering? Okay. Also, that how to select the institute and college, that according to my interest in my interested field, which college, which institute is the best. And also that what are the various scholarship available to the D2D students, right? And the very most important question, which most probably all the students have, that which is the best branch or best suited institute for me, right? કે મારી માટે કઈ બ્રાન્ચ કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સૌથી બેસ્ટ રહેશે, આ બધા જ પ્રશ્નો તમારા માઇન્ડમાં હશે હમણાં, રાઈટ? તો આ સેશનમાં એ બધા જ પોઈન્ટ કવર કરવાના ટોપિક અમે રાખ્યા છે. અને સેશનના અંતમાં at the end of the session we have question answer session also. એટલે તમારે કોઈ પણ ક્વેરી કે ડાઉટ હોય તો સેશનના અંતમાં તમે પૂછી શકશો. અને વચ્ચે કોઈ જનરેટ થાય, તમને એવું લાગે કે મારે પૂછવું છે, તો ચેટ બોક્સ છે આપણે ગૂગલ મીટમાં, તમે ચેટ બોક્સમાં યુ કેન કીપ યોર ક્વેશ્ચન્સ, તમે એમાં રાખજો. તો એ બધા જ ક્વેશ્ચનને છેલ્લે અમે આવરી લઈશું અને વી વિલ આન્સર ઓલ ધેટ ક્વેશ્ચન. So not taking much more time, now I like to request head of the department, our Dr. Bhargav Goradia sir, to give more insight about the D2D admission process and the career guidance guideline for our dear students. Sir. Thank you very much, Professor Robinson Paul. આજની આ ઓનલાઈન વેબિનાર સેશનમાં, કેરિયર ગાઈડન્સના સેશનમાં સર્વે વિદ્યાર્થીઓ, તેમના માતા પિતાઓ અને ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ પછીની ઓપોર્ચ્યુનિટી વિશે ભેગા થયેલા બધા જ વિદ્યાર્થીગણને હું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું. આજનું જે સેશન આપણે ગોઠવ્યું છે એ મુખ્ય 3 ભાગમાં વિભાજિત છે. જેમ પ્રોફેસર રોબિન્સન પોલે કહ્યું એ પ્રમાણે there are multiple things that nowadays open for diploma students. Before I start the details about my talk, થોડી ઘણી વાતો જે હું કરવા માંગુ છું જે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને આગળ જતા ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે, એનું હું જરા આઉટલાઈન તમને આપવા માંગીશ. કે અત્યારના જે આ પેન્ડેમિક અને ઇનોવેટિવ જે ફાસ્ટ ટેકનોલોજી મૂવ થઈ રહી છે એમાં ખરેખર ડિપ્લોમા એન્જિનિયર માટે શું સ્કોપ અવેલેબલ છે, રાઈટ? તો એના માટે ખાસ કરીને થોડી ઘણી જે અમે બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ અમે કરી રહ્યા છે એનું પણ ઉદાહરણ આપીશ જોડે જોડે. અને તમારા માટે કઈ બ્રાન્ચ કઈ રીતે પસંદ કરવી, જેમ રોબિન્સન પોલે વાત કરી પ્રમાણે, કે જેથી કરીને આગળ જતા તમે તમારા પગ ઉપર કઈ રીતે ઉભા રહી શકો છો. तो 3 थिंग्स आर ऑफ मेन इम्पोर्टेंस. 3 चीज यहाँ पे बहुत ही फोकस करना जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूट है वो इंडस्ट्री के साथ कैसे डील कर रही है, जो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री के साथ कैसे डील कर रही है, उसके अलावा इंडस्ट्री के साथ में कौन कौन से जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं, स्टूडेंट को इंडस्ट्री से कैसा सपोर्ट मिल सकता है, इंडस्ट्री से कैसे कनेक्शन हो सकता है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज how you will be given the teaching learning session. So currently, if you have heard about the teaching learning session, majority of the focus of our engineering teaching is based on problem based learning.
So it is not merely teaching learning, but we are going to teach, or the institute which is going to teach based on problem-based learning and solution-based learning, they are going to produce the engineers of good quality, right? So I request Professor Ghanshyam to present the screen so that I'll be touching upon each and every point in detail. And at the end, we will be also having a query session. That is, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घनश्याम सर, तो आज का जो सेशन है 24 सितंबर 2020, कैरियर गाइडेंस ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा। तो जो लोग विद्यानगर और बीवीएम से परिचित नहीं है उनके लिए छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय is the engineering college was established in the year 1948। 1948 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो जो ब्रिटिश चर्च में जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके हाथों से किया गया था। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ विजन कि जो रूरल मास है उनको कैसे अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग एजुकेशन मिले। तो देयर वर टू विजनरी लीडर under the guidance of Shri Sardar Vallabhbhai Patel, Bhai Kaka Bhai and Bhikha Bhai. These were the two leaders, those who have took the challenge, and they have established this wonderful learning campus in the place of Vallavidhyanagar. Presently, this BVM Engineering College is associated with Charutar Vidya Mandal, and Charutar Vidya Mandal जो है उसके under में there are more than 50 institutions, right from schools, that is KG to post PhD level programs are running under the umbrella of Charutar Vidya Mandal. Along with that, BVM College is the only autonomous institute in the state of Gujarat. We will be discussing more about BVM at the end. If you have any other query, we will be also paying attention. We are affiliated with Gujarat Technological University. ठीक है, घनश्याम सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आज के जो प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है वो है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल है स्टेट और नेशनल लेवल पे, फ्यूचर और स्कोप क्या है ब्रांच का, हाउ टू सिलेक्ट ब्रांच, कौन कौन सी आपको स्किल चाहिए। आप तो ऑलरेडी डिप्लोमा इंजीनियर हो तो आपको थोड़ी बहुत तो स्किल आपके पास है ही। हाउ टू सिलेक्ट द इंस्टीट्यूट, द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस स्कॉलरशिप, एंड आपके लिए कौन सी ब्रांच सबसे बढ़िया है। मैं सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अपने वीडियो और ऑडियो म्यूट रखें सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन एज वेल एज वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपका जो इंजीनियरिंग का एडमिशन जो है वो आपको पता है, इट इज हैंडल्ड बाय एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, ACPC उसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो ACPC में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो लाइन है डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग का भी एक लाइन दिखेगा और वहां पे आपको क्लिक करना है। वैसे आप सबने ऑलमोस्ट किया ही होगा, सो यू नो कि आपका ACPC का जो वेबसाइट है वहां पे सब चीज अपडेट होती रहती है। देयर वर फ्यू क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरी अभी हो रही थी डिप्लोमा ग्रुप में हमारे कि अभी क्या होने वाला है क्या नहीं है। तो मैं अभी आपको एट द एंड आई विल बी शोइंग कि कौन कौन सी तरह से आप उसमें क्या क्या चीज देख सकते हो। तो ACPC की वेबसाइट पे आपको ये सब चीज मिलते हैं। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है BE BTech या फार्मेसी या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फार्मेसी, और सभी चीज भी उसमें से ही हैंडल होती है। उसका जो कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस है वो है info@jekpcldc.ac.in एंड उसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ACPC क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, जब ACPC की साइट पे आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है। तो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको, D2D के लिए भी मिलेगा, ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ मिलेगा, मेरिट मार्क्स मिलेगा, सभी ब्रांच के हिसाब से मिलेगा। अभी लास्ट तक का जो रूल था वो कैसा था, फॉर एग्जाम्पल इफ कोई भी स्टूडेंट ने मैकेनिकल से पास किया या सिविल से पास किया या इलेक्ट्रिकल से पास किया है तो उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता था कि सिविल डिप्लोमा इंजीनियर है तो उसको सिविल डिग्री में ही एडमिशन मिल सकता है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में मिल सकता है, प्रोडक्शन में भी मिलेगा नहीं। लेकिन इस बार से
एआईसीटी ने और जो हमारी अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई भी इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपके पास अगर वैलिड डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, देन यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांच। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है, बराबर है। लेकिन इस बार जो बैरियर था, काफी टाइम ऐसा होता है कि आपने 2 साल 3 साल पढ़ा डिप्लोमा में और 3 साल के बाद आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए इतना अच्छा ब्रांच नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। तो आपको ये चांस मिल रहा है कि आप अपना ब्रांच चेंज करना चाहो तो इंजीनियरिंग में आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो। और इसीलिए ये जो आपका आज का सेशन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ भी यहाँ से मिलता है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी आपको एसीबीसी से मिलता है। फीस स्ट्रक्चर मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन सी फीस है, कौन सी नई इंस्टीट्यूट ऐड हुई है, ये भी आपको यहाँ से मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन बुकलेट जो आपने शायद डाउनलोड किया भी होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्कॉलरशिप, तो वो स्कॉलरशिप का भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है। लिस्ट ऑफ वेरियस हेल्थ सेंटर बैंक ब्रांच, तो ये भी उसमें से मिल जाता है। सीट मैट्रिक्स मतलब इंस्टीट्यूट के हिसाब से कितनी सीट अवेलेबल है कौन सी ब्रांच में, ये सब आपको यहाँ से दिखता है। उसके अलावा क्लोजिंग रैंक, तो जैसे मैंने बताया कट ऑफ रैंक आफ्टर ईच राउंड, वो भी आपको एसीपीसी से बताएगा। मतलब यहाँ पे तो डिप्लोमा के लिए जो राउंड होगा, तो काफी क्वेरी आ रही थी कि पहला राउंड कब है, उसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो हम आपको दिखाएंगे बाद में तुरंत ही। और उसके अलावा फ्रिक्वेंटली जो भी नए नए सर्कुलर आते हैं, मतलब जानकारी वाले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपने अभी जो भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्टडीज कंप्लीट किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये हाईलाइट दे रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे देखना चाहो तो यू विल बी एबल टू सी। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, जो आप में से काफी लोगों ने किया होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, टेलीकम्युनिकेशन है, मेटलर्जी है, सिरामिक इंजीनियरिंग है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग भी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, टेक्सटाइल। और ये सभी इतने ब्रांच है कि जिसमें आप कहीं पे भी इंजीनियरिंग करना चाहो तो आपके लिए D2D में एडमिशन पॉसिबल है। मरीन इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, एनवायरमेंटल है, प्रोडक्शन है, रबर है, इरिगेशन, मैनेजमेंट, ये सभी इंजीनियरिंग की ब्रांच जो लिस्ट की गई है उसमें से कोई भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले सकते हो। मेरिट बेस्ड का मतलब क्या है कि देयर विल बी ए मेरिट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सिक्योर्ड इन योर डिप्लोमा। आपका डिप्लोमा का जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है, राइट। तो वो मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने जो चॉइस फिल करनी है उसके हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप देखिए कि इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांच है तो उसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी है वो है सर्किट ब्रांच, दूसरी कैटेगरी है नॉन सर्किट ब्रांच और तीसरी कैटेगरी है जो अदर ब्रांच, राइट। तो सर्किट ब्रांच मतलब क्या है? सर्किट ब्रांच मतलब जिसमें ज्यादातर, सर्किट ब्रांच मतलब ज्यादातर जहां पे सर्किट या कंप्यूटेशन का चीज या उसका फंडामेंटल ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रांच। जैसे इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, आईसीटी है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा नॉन सर्किट में कौन कौन सी आ जाती है? ऑटोमोबाइल है, मरीन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, रबर टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। और अदर ब्रांच में क्या क्या आता है? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, ये सब आ जाता है अदर ब्रांच में। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है। अभी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कि कौन सी ब्रांच में क्या हो सकता है, कौन सी ब्रांच में आपको कौन कौन सी, लेकिन आपको ब्रॉडली मैं यहाँ पे बता दूं कि हर एक ब्रांच में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको उसका थोड़ा बहुत फ्यूचर और स्कोप थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा और थोड़ा बहुत आपको ये भी मालूम, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी जो नीड है ना, नीड क्या है, व्हाट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग, वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या हो सकता है कि कोई भी एक इंजीनियरिंग का नॉलेज जो आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होना जरूरी है। और वो आपको क्या फायदा करेगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज से आपको क्या फायदा होगा? यू विल बी अ वैल्यूएबल पर्सन इन द इंडस्ट्री। तो
मैं सबसे पहले सिविल का एक रफ ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो क्या क्या कौन कौन से इंजीनियरिंग में कवर करता है, तो सिविल है, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सिविल के अंडर में आ जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप अगर आपको पूछा जाए तो सबको थोड़ा बहुत तो पता है कि ये ब्रांच हमेशा डिमांड में रहती है। क्यों? बिकॉज always you are finding its application in building construction, material, environment monitoring, water and land management. फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? तो फ्यूचर में अभी आप देखो कि एट प्रेजेंट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इज इन ट्रबल। आपको ऐसा लगेगा कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो अभी ट्रबल में है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल क्या क्या फैक्टर है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं है। इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मेनी अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और प्रेजेंटली जो हम बात कर रहे हैं since last 2-3 years we have been discussing about smart city and rural को urban में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने का, जिसको बोलते हैं रूरबनाइजेशन। तो ये सब जगह जो है उसमें सिविल इंजीनियर आर प्लेइंग ए वाइटल रोल। तो उसमें एनवायरनमेंट भी आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी आ गया, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, राइट। तो ये ब्रॉड आउटलाइन हो गया सिविल का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी जो स्कोप है वो क्या है? आपको पता है कि पावर जनरेशन, कैन वी लिव विदाउट पावर? नो, इट हैज बिकम मैंडेटरी कि अभी इंडिया का हार्डली 5 से 10% एरिया ही इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल रहा है। पहले के जमाने में 10 साल पहले की बात करें तो देयर वर 35% ऑफ द एरिया लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी पावर जनरेशन, पावर जनरेट करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जनरेशन एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूट करना वो बहुत बड़ी चैलेंज है। तो पूरे इंडिया में वी डू हैव मल्टीपल पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन वो अलग अलग तरीके से होती है, राइट। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो भी इसके अंदर में आता है, जिसको हम बोलते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, वो भी हमें पता है, किसी भी इंडस्ट्री और हाउस होल्ड में वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस, राइट। देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नीड एंड प्लानिंग। तो ये उसका अभी जो स्कोप है वो ये है। फ्यूचर क्या है इसका? तो फ्यूचर अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी जो है बहुत ही डिमांड हो रही है। सोलर एनर्जी जो है उसका एक अलग से काफी सालों से, पिछले 10 साल से बहुत डिमांड बढ़ा हुआ है। उसी हिसाब से विंड एनर्जी का भी डिमांड धीमे धीमे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, since last 5 years we have been using two-wheelers which are we are calling as e-vehicles, but nowadays many corporate industries, many giant companies are involved in producing electric vehicles of two-wheelers as well as four-wheelers. So next 5 years we will be having replacement of conventional vehicle by e-vehicles, right? Power system protection, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपका सरप्लस है उसको स्टोर करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो जिनके घर में अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है उनको ये पता होगा कि इफ दे आर नॉट यूजिंग एडिशनल सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देके उसमें से रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं, राइट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये हो गया इलेक्ट्रिकल का। अभी बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है, केमिकल इंजीनियरिंग में स्कोप जो है वो है ज्यादा से ज्यादा, अभी आप देखो केमिकल प्रोडक्ट्स सब जगह पे यूज होती है। डेवलपिंग पेस्टिसाइड्स, जैसे आप कोई भी बात करो, पेस्टिसाइड्स का सबसे ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज होता है। देन ड्रग, क्लोथ एंड वेरियस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस काइंड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, राइट। उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है? उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है। मतलब अभी आप देखोगे केमिकल में बहुत सारे चीज ऐसे आ रहे हैं जिसमें से आप बहुत सारी नोवेल चीज आप डिटरमाइन कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है और ये अभी काफी 1-2 सालों से काफी डिमांड हो रही है उसकी। न्यूक्लियर पावर एंड हाइड्रोकार्बन, ये भी एक बहुत ही बड़ा एरिया है उसके लिए, केमिकल इंजीनियर के लिए। डेवलपिंग ऑफ एंटीबॉडीज, जो अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में से हम पास हो रहे हैं
एंटीबॉडीज डेवलप करना मतलब अल्टीमेटली दीज आर द केमिकल्स विच इज टू बी प्रोड्यूस एंड इट इज टू बी एब्सॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी। तो एंटीबॉडी मतलब आपके पास अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए एंटीबॉडीज काम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह से मैकेनिकल, तो उसमें कौन कौन सी ब्रांच आ जाती है? मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, मेटलर्जी है, ऑटोमोबाइल है, मैकेट्रॉनिक्स है। तो ये ब्रांच भी हमेशा डिमांड में रहती है। आपने सबसे सुना होगा कि देयर आर 3 फंडामेंटल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, राइट। तो ये कौन कौन सी जगह पे डील करती है? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम आपको एसीपीसी में क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे। सिर्फ ये 5 मिनट जो है हर एक ब्रांच का स्कोप और उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम दिखा दें, उसके बाद मैं वापस आऊंगा एसीपीसी के गाइडलाइन पे। Don't worry, we will be taking enough time in your question answer as well as we will be also sharing all the details related to ACPC. So don't थोड़ा धीरज रखिए, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप धीरज रखिए। तो हमेशा जैसे मैकेनिकल है ऑलवेज इन डिमांड, तो ये क्या क्या चीज इसके साथ होती है? मैकेनिकल ऑलवेज डील विथ मशीन एंड इट्स डिजाइन, राइट। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंप्यूटर से डिजाइन अभी हो रहा है सभी जगह पे, और उसमें मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन से बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। रोबोटिक्स इज आल्सो वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, राइट। फ्यूचर स्कोप क्या है इसका? फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? तो अभी आपने सुना होगा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0, right? And we are also coming across a new technology which we are calling as 3D printing technology। तो 3D printing technology से बहुत सारी चीज ऐसी हो रही है जो पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना इजीली कोई भी पार्ट्स को डेवलप कर पाऊंगा। So 3D printing is one of the important future of mechanical and allied branches. Next slide, please. Next, coming to computer IT and allied branches. So what are the scope? So if you are interested in programming, फिर आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मशीन लैंग्वेज है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो ये जो सब चीज है वो कंप्यूटर और आईटी वाले डील करते हैं। उसका फ्यूचर स्कोप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, डीप लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म, डेवलपिंग कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारे भारतीय की खासियत रही है कि किसी भी जगह पे आप देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भारतीय कंपनी हमेशा आगे रहेगी, बिकॉज वी आर सो गुड इन प्रोग्रामिंग एंड वी आर इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। अगर आप मैकेनिकल में हो, अगर आप सिविल में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कोई भी ब्रांच वाला जो बच्चा है उसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज है उसका साउंड प्रोग्रामिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। Then coming to electronics EC, ETC, that is electronics telecommunication, उसका स्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, VLSI डिजाइन, माइक्रोवेव एंड रडार टेक्नोलॉजी, एंटेना डिजाइन, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स आर्किटेक्चर। तो आप अभी ऐसा कोई भी चीज आप नहीं देख पाओगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ना चल पाएगी। Everywhere you talk about anything, you will be finding sensors, electronic sensors which are supporting the device. You talk about any latest edition of four-wheelers, so engine remains same. What is changing is security mechanism because of the advanced sensors. तो इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? So presently we are all using 4G. Within few months and within few half year time, we will be all India will be also witnessing 5G networks, Internet of Things, huge role in developing smart cities, because smart city is not only developed with the help of infrastructure, it is require lot many sensors, lot many electronic sensors to support it. Smart portable solution, electronic gadgets, all sorts of what I can say medical devices are based on electronic sensor only. Mobile application development, satellite communication, robotics. So everywhere you will be finding that in a day there are lot many innovative things are happening in the electronics and electronics communication. Next slide, please. So when you have so much option available, naturally you will be confused that what to choose and what not to choose. So when you have multiple options, provided your merit is good and you will be having option to choose that which branch is best for you, then you will be confused because of this many options available. Next slide. So what AICT has recommended since last 6 months, AICT has declared that these are the emerging areas. So emerging areas क्या है?
इमर्जिंग एरियाज ये है जिसमें आप कोई भी एक एरिया में आप अपनी प्रोफेशन से ले लेते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाता है। तो एआईसीटी ने 10 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, आप किसी भी जगह पे सर्च करोगे ये 10 एरिया आपको मिलेंगे। कौन कौन से है 10 एरिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, 3डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, वर्चुअल रियलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो the meaning is whenever AICT is recommending that if a student is pursuing engineering in any of the branch and if student is having any of this expertise of any of these area, he or she will be absorbed by the industry. तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज में अगर आपकी एक्सपर्टीज होगी तो आपको मार्केट में आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, कोई भी इंडस्ट्री में आपकी डिमांड रहेगी। तो ये 10 एरिया ऐसे है जिसमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल में हो तो उसमें भी आप आपका पूरा मैकेनिकल वेयर हाउस है उसको आईओटी से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप कोई भी ब्रांच में हो, अगर आपको इसमें से कोई भी एक एरिया में अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आपको आगे जाके बहुत ही फायदा मिलने वाला है, राइट। तो ये इमर्जिंग एरियाज जो है उस पे आपको फोकस करना है। कहीं पे भी आपको एडमिशन मिले, कौन सी भी ब्रांच में आपको एडमिशन मिले, आपको इमर्जिंग एरियाज में फोकस करके आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ टू सिलेक्ट ब्रांच। सो जैसे आप लोग ने ऑलरेडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से कॉमन कोर्सेज होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी पैशन क्या है, राइट। आप किस चीज से बोर नहीं होते हो, राइट। आप किस चीज पे ज्यादा टाइम अपना देना चाहते हो। तो यही सब चीजें हैं जो आपको, अगर शायद आपने गलती से भी कोई डिप्लोमा में कोई एक ब्रांच में ले लिया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरी ब्रांच में जाना चाहो तो जा सकते हो। तो यही सब चीज आपको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है और आपका मेरिट नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीज करने के पसंद आता है, कौन सी चीज करने से आप बोर नहीं हो जाते हो, कौन सी चीज पे आप ज्यादा आपका फ्री टाइम स्पेंड करते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी टाइप का काम करने में मजा आता है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा भी होता है जो एकेडमिक से बाहर का भी हो सकता है, लेकिन एकेडमिक इंटरेस्ट भी क्या है और दूसरा इंटरेस्ट भी क्या है वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और आप अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आपको 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो, ये सब चीज आपको ध्यान में रख के ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ब्रांच पे लेना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे ब्रांच तो बहुत सारे ही है, आपकी ख्वाहिश भी बहुत होगी कि मुझे ये ब्रांच में ले लेना है, मुझे ये, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एवरीवन मे नॉट गेट ऑल द ऑप्शन। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो आपका जो मेरिट है उसके हिसाब से ही आपको किसी एक ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। तो सभी को एक ही चीज पे या जो भी उसकी चॉइस है वो मिलना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपने बोल दिया कि मुझे यही चाहिए तो ऐसा नहीं होता है। आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है, आपको रिजिड अप्रोच नहीं रखना है। फ्लेक्सिबल मतलब आपको पता है कि इंजीनियरिंग में क्या आता है, राइट। तो इंजीनियरिंग में क्या आता है वो पता चलने के बाद आपको फिर यही कॉलेज और यही ब्रांच, तो दोनों साथ में मिलना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है और ब्रांच में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड आपको रखना है। क्यों रखना पड़ता है? बिकॉज आपका मेरिट जो होता है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। एवरीवन मे नॉट गेट एडमिशन टू द डिजायर्ड प्लेस, राइट, एज वेल एज डिजायर्ड ब्रांच। लेकिन आपको अपने आइडिया को फॉलो करना छोड़ना नहीं है। आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल रहा है, किसी भी कॉलेज में आप ले रहे हो, लेकिन आपके आइडिया तो अपने ही है, उसको तो आपके अपने पास ही रखना है। और हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपको क्या चीज में ध्यान में रखना है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोबोट बना रहे हो तो रोबोट बनाने के लिए आपको सिर्फ मैकेनिकल का नॉलेज चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी चाहिए। सो देयरफॉर
इट्स ए इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज विच विल हेल्प द स्टूडेंट इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वही चीज आपको काम लगती है आगे जाके। और उसके लिए आपको ये सब चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हमेशा जो भी चेंज आते हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जैसे अभी पिछले 6-7 महीने से हम जो पेंडेमिक सिचुएशन से पास हो रहे हैं, तो काफी चीज ऐसी थी जो हम पहले कभी करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी नाउ वी आर यूज्ड टू वर्क विद न्यू नॉर्मल। तो वो अडेप्ट करनी पड़ती है। अगर अडेप्ट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, देन वी विल बी थ्रोन आउट, राइट। तो ये कंटिन्यूअस आपको जो भी चीज होती है वो अडेप्ट करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको अडेप्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको लर्निंग को कभी स्टॉप करना नहीं है। तभी आपको बोलते होंगे कि 10th के बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, फिर मजे ही मजे है, कुछ करना ही नहीं है। डिप्लोमा में आपको पता चला कि डिप्लोमा में भी आपको वर्क तो करना पड़ता है। अभी आगे आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव में आगे जाओ या फिर आगे D2D में इंजीनियरिंग में स्टडी करो, हर जगह पे आपको लर्निंग अप्रोच तो रखना ही पड़ता है। किसी भी जगह पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आके मैं खुश होकर आराम से बैठ सकूंगा। हर जगह पे आपको काम तो करना ही पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स जब आप देते हो तब आपको क्या मिलता है, लर्निंग अप्रोच आपका हमेशा खुला रहना चाहिए। एट द एज ऑफ 50 या 60 साल कोई भी उम्र का बाद नहीं होना चाहिए लर्निंग के लिए, राइट। तो लर्निंग अप्रोच आपके पास होगा तो आप किसी भी जगह पे आप आगे बढ़ पाओगे। और फाइनली जो भी आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन करना है। आपने सीख तो लिया लेकिन उसका अभी एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन मतलब उसको कहाँ पे कैसे यूज करोगे। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मुझे पता है कि आप सबका एक कोई ना कोई पैशन होता है और कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, वो होना जरूरी है। क्योंकि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को या अपने कोई भी सेलिब्रिटी को आप अपना रोल मॉडल लेके आगे बढ़ते हो, और आपके अपने पैशन होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सिर्फ पैशन होने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे आपका डेडिकेटेड एफर्ट होना जरूरी है। तो ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको ले जाएगा नए लेवल पे, अगले लेवल पे, और यही चीज आपको दूसरों से अलग कर पाएगी। तो सबसे एक महत्व की चीज यहाँ पे होती है कि हमारी मेंटालिटी होती है कि मैं पहले पढ़ लूं फिर ये करूंगा, मैं पहले पढ़ लूं फिर मैं ये करूंगी। तो अभी का ये जो जमाना है ना, उसमें ऐसा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको पढ़ने के साथ साथ भी बहुत सारी चीज सीखने को मिल सकती है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दैट डोंट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। आपका स्टडी खत्म होने के लिए वेट मत कीजिए, आपके जो भी आइडियाज या पैशन है उसके ऊपर काम चालू कर दीजिए। ये इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप जब तक पढ़ के बाहर निकलोगे उसके पहले आपके पास जॉब ऑफर होगी, या आपकी खुद की एक कंपनी होगी, या आपके पास कुछ अर्निंग के लिए आपके पास सोर्स आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंग्स पे आपको फोकस करना है। इवन आप स्टूडेंट हो तो भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। एंड बिलीव मी, बीइंग ए स्टूडेंट आपके पास सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट लाइफ में जो करते हो वो स्टूडेंट लाइफ में से बाहर निकलने के बाद काफी चीज जो है वो नहीं कर सकते हो, जो क्रिएटिव मोड में आती है, राइट। सो बीइंग ए स्टूडेंट आपको हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट करके उसको प्रोडक्ट में कंप्लीट करो। तो ये सब जो चीज है ना वो बहुत ही मैटर करती है। तो काफी मैं एग्जांपल 2-3 आपको हाईलाइट करूंगा जिससे आपको पता चले कि क्या हो सकता है। तो ये एक टीनेज लड़का है, हर्षवर्धन जाला करके। 15 साल का ये लड़का है। अगर आप में से किसी ने इसका नाम सुना है तो अच्छा है। ये 15 साल की उम्र में ये लड़का एक कंपनी का मालिक है, जो कंपनी का नाम है एरोबोटिक 7। और उस कंपनी में उसके साथ 20 से ज्यादा इंजीनियर उसमें काम करते हैं। ये क्या करता है, ये आप उसकी वेबसाइट है, उसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वो क्या है, उसका बेसिक पैशन क्या है, ही इज अ टेक्नोलॉजिस्ट, इन्वेंटर, प्रोग्रामर, टिंकरर, स्पीकर एंड मेंटर, राइट। ही इज हेडिंग अ टीम ऑफ इंजीनियर। जैसे मैंने बताया उसके साथ में उसके अंडर में बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं। ये इतनी छोटी उम्र में उसने 13 से ज्यादा कंट्री में
विजिट किया है और प्रेजेंटली भारत सरकार के साथ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में उसका काम चालू है। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि जो लैंडमाइन डिटेक्शन जो होता है ना, जो बॉर्डर पे लैंडमाइन आती है, लैंडमाइन डिटेक्शन एज वेल एज डिस्ट्रॉय, मतलब डिटेक्ट करने के बाद डिस्ट्रॉय भी करता है, वैसा उन्होंने ड्रोन बनाया हुआ है। तो at the small age you can see that this is the person which I am talking about। तो ही इज द पर्सन। तो उसने ऐसा ड्रोन बनाया है जो लैंडमाइन को डिटेक्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। और भारत सरकार और बहुत सारी अलग अलग कंट्री की सरकार के साथ उसने बहुत बड़ा टाइप किया हुआ है। प्रेजेंटली भारत सरकार के साथ उसने 5 करोड़ का एमओयू साइन किया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो उसका बहुत बड़ा डिटेल मिलेगा। तो 2 साल पहले हमारे साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था और हम क्लोजली वर्क कर रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट है और हमारी जो टीम है उनके साथ भी ही एज एक्टिवली इन्वॉल्व। तो कहने का मतलब यह है कि उम्र कोई चीज मैटर नहीं करती है और आपको हमेशा आपकी जो पैशन है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। एट दिस स्मॉल एज ही इज हैंडलिंग अ इंजीनियर्स एज वेल एज ही इज रनिंग ए कंपनी और उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है भारत सरकार के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हर जगह पे जैसे अभी कुछ हुआ कि अभी ये कोरोना के लिए बहुत सारी चैलेंजेस हमें लाइफ में फेस करनी है, तो काफी ऐसी चीज है, कंपटीशन आती है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये हमारे स्टूडेंट के सब लिस्ट है जिन्होंने आइडियाथॉन और हैकाथॉन अलग अलग कंपटीशन में बहुत अच्छे परफॉर्म करके अलग अलग प्राइजेस एज वेल एज चैंपियंस भी बने, रनर अप भी बने। तो उसका तो मतलब ये है कि स्टूडेंट लाइफ में आप अपना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारे एक स्टूडेंट ने अंकलेश्वर में ऑटोमेटिक ह्यूमन बॉडी सैनिटाइजर मशीन दिया था। तो वेस्ट वेस्ट में से बेस्ट बनाया, पूरे वेस्ट में से बेस्ट बना के दिया है, राइट। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया था थर्मल गन। थर्मल गन अभी जो मार्केट में मिल रही है 2500 रुपए के आसपास बन रही। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ थर्मल गन ऑफ जस्ट 800 रुपीज एंड उसका आप कहीं भी रिमोट मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आप अपनी पैशन है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट है अजीज सुतरवाला करके, उन्होंने IBM नास्कॉम नेशनल लेवल हैकाथॉन में फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किया है। तो ऐसी कोई बैरियर है नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू टू डू द थिंग्स। तो अभी आपको इंजीनियरिंग के लिए स्किल क्या चाहिए? तो आप तो ऑलरेडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आ रहे हो, तो आपको ज्यादातर केस में पता रहता है कि सबसे पहले चीज जो होती है आपकी इंपॉर्टेंट वो है आपकी एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल मतलब आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको इफ एल्स पता होना चाहिए, लॉजिक आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। We have observed the student those who are coming from diploma background, they are relatively poor in mathematics. So mathematics is everywhere in engineering। तो आपका अगर मैथमेटिक्स थोड़ा भी अच्छा है तो आपको आगे जाकर बहुत ही फायदा मिलता है। तो उसका मतलब ये है कि ये 3 चीज है, वो 3 पिलर है इंजीनियरिंग के, एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड साउंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके साथ साथ सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये जो है ये सब मिला के आपको अच्छा इंजीनियर बनाता है। अभी आपको लगेगा कि ये अगर मेरे पास नहीं है तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए? तो देयर आर वेज बाय विच यू कैन इम्प्रूव इट। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब चीज करने के लिए आपको सबसे पहले एनालिटिकल स्किल जो है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो सुडोकू है। हर रोज घर पे अगर आपके न्यूज़पेपर है, मोबाइल में भी ये सब चीज आती है। यू स्पेंड टाइम, अगर आपको इसमें सॉल्व करने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है, लेकिन उसमें आप टाइम स्पेंड कीजिए। रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन सम गेम्स, यू स्पेंड टाइम ऑन दिस माइंड पजल्स एज वेल एज सॉल्विंग सुडोकू। तो इससे क्या होगा कि यू विल बी इंप्रूविंग ऑन योर एनालिटिकल स्किल एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग, आपका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और साथ साथ में मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व है ही थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज जो है वो आपको हमेशा फायदा करती है। तो प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होता है, एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमारे जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छी तरह से भगवान ने बनाया है, उसको आप जिस तरह से डेवलप करना चाहो कर सकते हो।
इट हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू नर्चर इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। तो ये जो है, आप अगर रेगुलर करते हो तो आपका एनालिटिकल स्किल भी अच्छा होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा होता है। अभी बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन को कैसे सिलेक्ट किया जाए। आपने ऑलरेडी डिप्लोमा स्टडीज किया है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता रहता है कि आप जहाँ पे पढ़े उसका पॉजिटिव थिंग क्या था, उसका नेगेटिव ड्रॉबैक तो सब जगह पे थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन आपको उसकी अच्छाई भी मालूम पड़ती है, राइट। तो आपको तो वैसे पता है, जो एसीपीसी से एडमिशन होता है वो एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो आपको पता ही है कि एसीपीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन करवाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो वो इंस्टीट्यूट या ब्रांच एक्रेडिटेड है कि नहीं। तो एक्रेडिटेशन अलग अलग कंपनी देती है, जैसे एनबीएन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, नेक दैट इज यूजीसी से नेक एक्रेडिटेशन मिलता है, एनआईआरएफ इज द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, देन गुजरात का भी स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं जीएसआरएफ, गुजरात स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये अलग अलग एजेंसी है, तो ये मैटर करता है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एनबीए का एक्रेडिटेशन है, नेक का एक्रेडिटेशन है, एनआईआरएफ में बहुत ही अच्छा रैंकिंग है, एनआईआरएफ में रैंकिंग आना ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, तो ये सब चीज मैटर करता है। फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होती है, आईआईटी, एनआईटी, वैसे आप सबको पता है कि उसका हमेशा एक लेवल रहता है अलग सा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक अलग सा लेवल होता है। रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, जो भी आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एक रेपुटेशन होता है। रेपुटेशन मतलब उसका एक स्टेटस होता है कि यहाँ से पास होते हैं तो प्लेसमेंट कैसा होता है, पास होने के बाद अगर आप जॉब करते हो या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ये रेपुटेशन जो है वो बहुत ही मैटर करता है, राइट। और उससे आपको फर्दर स्टडी करना है या फर्दर कोई भी जॉब या बिजनेस करना है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो और किसी कॉलेज का नाम लेते हो तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करता है, ओ यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस कॉलेज, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस कॉलेज, सो नेचुरली एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो वो बॉन्डिंग जो है वो आगे जाके आपको बहुत ही काम करता है। फैकल्टी क्रेडेंशियल, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो तो सबसे पहला चीज क्या उसका इंपॉर्टेंट होता है कि इंस्टीट्यूट या कॉलेज की फैकल्टी का लेवल कैसा है। क्योंकि आप देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, अ फैकल्टी कैन मेक और ब्रेक द इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। तो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे ऊपर करता है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर में जो इंटरेस्ट है वो कौन बनाता है या बिगाड़ता है, फैकल्टी। तो अगर फैकल्टी अच्छे हैं तो स्वाभाविक है आपको वो जगह पे पढ़ने का मजा आएगा। अगर फैकल्टी का लेवल मॉडरेट है या अच्छा नहीं है तो स्वाभाविक है आपको फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा करने को आएगा। सेल्फ स्टडी मतलब यू विल बी लूजिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब लूज हो जाता है तो उसमें फिर आपको जितना मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आता है, राइट। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, वहाँ के फैकल्टी का रेपुटेशन, फैकल्टी का क्रेडेंशियल, राइट। तो फैकल्टी की स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। कोई एक जगह पे जाओ तो हर सेमेस्टर में फैकल्टी बदले जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे इतना अच्छा मजा नहीं आता है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कॉलेज, मतलब अगर कॉलेज कोई आउटस्कट एरिया में है तो स्वाभाविक है वहाँ पे अगर आपको कोई काम करना है तो वो स्वाभाविक है कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है, तो 4 बजे के बाद कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर कोई रिमोट लोकेशन में कॉलेज है तो वहाँ के उसके एडवांटेज भी थोड़े रहते हैं और डिसएडवांटेज भी रहते हैं। तो हमेशा एक जियोग्राफिकल लोकेशन का उस बहुत ही बड़ा रोल इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो वो कॉलेज का लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सब चीज मैटर करता है। देन अपॉर्चुनिटीज अदर देन एकेडमिक्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एकेडमिक्स में तो स्वाभाविक है कि ये सब चीज मैटर करती है, लेकिन एकेडमिक के अलावा वहाँ पे आपको को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर इनोवेशन रिलेटेड आपके पास कौन कौन से ऑप्शन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो ये क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट स्टूडेंट कैसे बनता है, जिसका एकेडमिक में भी इन्वॉल्व होता है और अदर देन एकेडमिक मतलब उसका जो पैशन है, उसका हॉबी है, उसके लिए भी उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो जैसे आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कल्चरल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, राइट, तो ये सब चीज के अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म मिलने जरूरी है। और उसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए, जो भी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसोर्स फैसिलिटी कैसी है, लेबोरेटरी फैसिलिटी कैसी है, ये सब चीज बहुत मैटर करता है।
And last thing which you can always consider is value for your money. क्या आप जो अमाउंट दे रहे हो, आर यू गोइंग टू गेट अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर योर मनी? जो भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो एडमिशन के लिए, उसका वैल्यू वहां पे है या नहीं है? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रख के ये आपको एडमिशन का डिसीजन या इंस्टीट्यूट का डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पेरेंट्स के लिए, अगर कोई पेरेंट्स है, अगर ये कोई सेशन अटेंड कर रहा है, तो उनके लिए ये थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स है। अभी तो डिप्लोमा से डिग्री के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए ये मैंने लिखा है कि डूज क्या है कि ऑलवेज हेल्प योर चाइल्ड इन डिस्कवरिंग वेयर हिज पैशन। मतलब आपके बच्चे का जो पैशन है उसके ऊपर फोकस करिए और उसमें आपको उसको आगे ले जाने की कोशिश करिए। डोंट लेट योर चाइल्ड परस्यू समथिंग बिकॉज देयर फ्रेंड्स आर ऑल्सो डूइंग। काफी सारे चीज में क्या होता है कि स्टूडेंट की मेंटालिटी ऐसे हो गई, मेरा फ्रेंड इस ब्रांच में ले रहा है, मेरी फ्रेंड इसमें ले रही है, तो मुझे भी उसमें लेना है। लेकिन उसको रियली में उसको उस ब्रांच के बारे में क्या डिटेल में पता है या नहीं है, वो देखना पड़ता है। मोटिवेट योर चाइल्ड टू परस्यू देयर पैशन, और हमेशा उसकी जो पैशन है उसको परस्यू करने के लिए मोटिवेट करना जरूरी है। डोंट्स क्या होता है पेरेंट्स के लिए? तो उसको पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि उनको डराना नहीं है, स्टूडेंट को डराना नहीं है। डू नॉट बर्डन योर चाइल्ड विथ योर एक्सपेक्टेशन। आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो आप अपने एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों पे मत डालिए। आपके जो ड्रीम है वो अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आज कोई पेरेंट्स अगर है तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर स्टूडेंट ही अटेंड कर रहे हैं तो उनको पता है कि आपको रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are the various scholarship websites which you can go, you can take a snapshot। बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है और स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की भी होती है, इंस्टीट्यूशन की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है और प्राइवेट कंपनीज की भी होती है। तो ये सब अलग अलग स्कॉलरशिप लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, और उसका डिटेलिंग आप उस वेबसाइट से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो स्कॉलरशिप के बारे में एक प्रीवियस स्लाइड में आप जाओ। स्कॉलरशिप के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके डिप्लोमा में परसेंटाइल अच्छे है तो MYSY स्कॉलरशिप जो बहुत ही पॉपुलर है, अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे गुजरात में, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। तो MYSY स्कीम में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल होते हो तो मैक्सिमम 50,000 तक आपको स्कॉलरशिप उसमें से मिलती है। ठीक है, सो ये सब जो चीज है, आई रिक्वेस्ट घनश्याम सर टू stop presenting for a while so that I can discuss something more about ACPC. Ghanshyam sir, you can ask the queries from the students so that I can handle those queries from my side. Yes, students platform is open to you. अगर किसी को कुछ पूछना है, queries in the chat box. Yeah, chat box. We have already got few of the queries. You can go to this ACPC site and if I can present, let me present from my side. Sir, I will give you go the to ACPC command, site. Sir, I'm enabling you. You can present the event. Sir. Okay. Yes, sir. It is enabled now. Okay. Okay. Somebody asking for library facility. So let me first of all go to this. Yeah. I hope you are able to see the screen of ACPC. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Visible. So in ACPC, you can see that the fourth tab is diploma to degree engineering. When I click on it, you will be diverted to diploma to degree engineering. So there are various circular which are listed over here. Right, last circular which was listed is this extension of the last date of the registration. Right, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो कौन सी लास्ट डेट है? लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो है 3 तारीख। राइट, 3 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे तक आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन का चांसेस नहीं है। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ब्रांच एलिजिबिलिटी, प्रोविजनल लिस्ट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल में अगर आप जाओगे तो उसमें इंग्लिश और गुजराती में दोनों जगह पे MYSY स्कॉलरशिप यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी उसका डिटेल हाईलाइट किया है।
जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर एसीपीसी के रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप बोलिए, अदरवाइज वी विल गो टू द अदर क्वेरीज। सी दिस इज द साइट, यहाँ से आपको एसीपीसी का जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा आपका लॉगिन होगा, उसमें से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एसीपीसी के अलावा आपका जो भी क्वेरी है या एसीपीसी में भी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। सी एट प्रेजेंट व्हाट यू आर आस्किंग इज मेरिट लिस्ट कब आएगा। सो मेरिट लिस्ट कब आएगा वो अभी कुछ डिसाइड एसीपीसी की वेबसाइट पे नहीं है। आपने देखा देयर आर नो सच थिंग हाईलाइटेड, सो यू नीड नॉट टू जंप ऑन इट। आपको थोड़ा सब्र रखना है, और जब भी वो नोटिस आएगा आपको क्लियर कट डेट वाइज उसका शेड्यूल डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पता चलेगा कौन सी डेट पे आप क्या कर सकते हो। अभी जो लास्ट सर्कुलर है उसके हिसाब से आपको पता है कि 3 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, राइट। उसके बाद अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो शेड्यूल करके उसमें से पता लगा सकते हो। जैसे आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग के बाद मॉक राउंड हो जाएगा, मॉक राउंड के बाद आप एक एक्चुअल राउंड होगा। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, तो someone was asking, can you explain difference between electronics, EC and ET? Yes, so I think Manan Deshpande. So Manan जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और EC में ज्यादातर आप देखो तो 70 to 75% syllabus is same. 70 to 75% syllabus is same, because in electronics and communication we are more focusing on communication. So we have almost 8 to 10 subjects which are different out of 40. So 8 to 10 subjects which are focusing on advanced communication like 4G, 5G, which also discuss about mobile application development, device driver. Then we have also concept like electronic product development. We have also included the subjects which are focusing on scripting language, which particularly deals with Python programming. Then along with that, we have also focused on some of the areas where we have computer networks, and along with that virtual instrumentation. So ये सब जो चीज है, अगर आप चाहो तो उसका मैं आप BVM की साइट पे जाके भी आप उसका ये सब डिटेलिंग देख सकते हो। So बेसिक डिफरेंस आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, otherwise 70 to 75% content is almost same. Electronics, telecommunication and EC almost 100% same, you can say like that. But yes, if you compare GTU syllabus and BVM autonomous syllabus, there is a lot many difference. GTU syllabus and BVM syllabus is almost you can say 50% advanced syllabus and industry ready syllabus for the BVM. So that's what I can share from my side. We have designed the syllabus as per the need of industry. तो इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है और कंटेंट डिजाइन किया है। वी हैव केप्ट अ सब्जेक्ट इन विच ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री वाले ही पढ़ाने आते हैं, ठीक है। सो मनन जी, आपका जो क्वेरी था उसको मैंने सॉल्व किया होगा। दूसरा कोई क्वेरी है? IT and computer, yes. See, IT and computer. So IT and computer is again, if you talk about information technology has got almost 80% syllabus common with computer engineering, right? Have you heard any industry where it is referred as computer industry? What we used to say, IT industry, because IT industry also deals with not only computer IT, it deals with all engineering. But still what we say, it is IT industry. So when I say IT industry, it does not mean that it only hires only information technology graduates. It has got all kinds of engineering graduates, whether it is a mechanical, civil, electronics, EC, computer, IT. But the main difference between computer and IT is, in computer engineering, there are hardly 4 to 5 subjects which are focusing on some of the hardwares, where in IT engineering it is purely focusing on programming, particularly
MIS, that is Management Information System. So almost you can say 80 to 85% syllabus is same, 4 to 5 subjects which are different, and that different subjects are mainly focusing on the computer hardware, right? Any other queries? Sir, do you have workshop in BVM? Yes, we do have a very giant workshop in BVM, and our workshop comprises all kinds of machines which are required in any of the industry, right? It was a very giant workshop, right? More than 6,000 square feet area occupied by the workshop. How much will be practical? How much will be practical? So do you mean that practical kitne hote hain? So each subject is associated with practicals in BVM. What is the difference between BE and BTech? So BE is Bachelor of Engineering, BTech is Bachelor of Technology. So all premium institutions means all institutions which are NIT, IIT, they are offering a BTech degree, Bachelor of Technology. And the institution other than premium institution, they are offering BE, that is Bachelor of Engineering, right? So it's a status, and it's a premium institutions tag is associated because they are doing far more better than other conventional engineering institutions, right? And that is why BE and BTechs are there. But if you have good knowledge, this BE or BTech is not going to matter a lot. Umesh Padiyar, what we will see in new in BVM compared to other college for mechanical engineering? See, I cannot compare other institutions because other institutions are also there, but BVM mechanical, you can ask to anyone. We do have legacy, we do have its own charm. यहाँ पे मैकेनिकल का जो लेबोरेटरीज और प्रोफेसर है पूरे गुजरात में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, राइट? तो मैं दूसरे किसी कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा अभी, लेकिन अगर आप किसी भी से भी पूछ सकते हो तो उसमें आपको यही रिव्यू मिलेगा कि यहाँ के जो फैकल्टी है और लेबोरेटरीज है वो वर्ल्ड क्लास है. इज द चॉइस फिलिंग डेट इज एक्सटेंडेड? अरे भैया मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग जो डेट है, अभी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपको बताया गया 3 अक्टूबर. उसके बाद चॉइस फिलिंग का डेट आएगा, उसका डेडलाइन का लिस्ट अभी उसके बाद आएगा. मेहुल पटेल जी, हाउ मच प्लेसमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नेविगेट. लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन so that you will be able to see that, right? You can I hope that you are able to see this screen. So you can go to this BVM, you can go to training and placement cell, right? यहाँ पे आपको हर साल का प्लेसमेंट डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा. कोई भी साल आप ले लो, 2008, 9, 9, 10, 10, 11, ये सब यहाँ से आपको क्या करना है, अवर BVM में जाना है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जाना है. सो पहला होम है, तो जब आप होम में होंगे तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी. उसमें से आपको अगर आप देखोगे यहाँ पे सब चीज़ हाईलाइट की गई है. डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, एकेडमिक्स है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा है. एक्टिविटी है, NIRF रैंकिंग. तो BVM इज द ओनली इंस्टीट्यूशन रैंक इन NIRF रैंकिंग इन टॉप 300, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी रैंक हुआ है, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे पुराने जो हमारे इवेंट्स हुए उसका पूरा गैलरी है, प्रेस नोट की है. तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट. यहाँ पे आप किसी भी 18, 19 ऑनवर्ड, मतलब यहाँ पे हमने सिलेबस का पूरा डिटेल रखा हुआ है. तो BVM को जब एकेडमिक ऑटोनॉमी मिला 2015 में, उसके बाद 2 बार हमने एकेडमिक साइकिल को करिकुलम रिवाइज किया है. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी ब्रांच वाइज सिलेबस, कब कौन सी ब्रांच चालू है, उसके कितनी सीट है और उसका डिटेल सिलेबस का लिंक मिलेगा. फॉर एग्जांपल कोई पूछ रहा था मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मैकेनिकल के ईयर वाइज सब्जेक्ट का लिस्ट मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट वो सब यहाँ से पता चलेगा. फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का डिटेल मिलेगा. तो ये सब जो चीज़ जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है वो
हमेशा 3 चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि इंडस्ट्री की नीड क्या है, 5 या 10 साल के बाद कौन कौन सी डिमांड आ सकती है, और अगर स्टूडेंट को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी चीज को आनी चाहिए। ये 3 चीज ध्यान में रख के ये पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम हर जगह पे इन्वॉल्व करके सिलेबस डिजाइन करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी है? सर, डू यू अलाउ टू यूज मशीन्स इंडिविजुअली इन द वर्कशॉप? सी, वर्कशॉप जो होता है, यू आर गोइंग टू D2D स्टूडेंट्स ऑलवेज एंटर्ड इन द थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपको जो भी टास्क असाइन होता है उसमें सुपरविजन तो होता है, बट सुपरविजन विल बी देयर फॉर इनिशियल लेबोरेटरी। लेटर ऑन यू विल बी गिवन इंडिविजुअल मशीन फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, राइट? तो ये सब चीज आपको मिलता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन सुपरविजन। Now I request Professor Ghanshyam to share something more about BVM, so most of the query related BVM can be solved. Yes, sir. Yes, sir. I'm going to present the screen. हाँ, अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो BVM के बारे में थोड़ी बात हम देखेंगे। डॉक्टर भार्गव सर ने हमें ज़्यादातर बातें जो बताई वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग जो करना है, कौन सी ब्रांच में हमें एडमिशन लेना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। अब थोड़ी जानकारी हम BVM के बारे में ले लेते हैं। यहाँ पे है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये फ्रंट गेट का आप फोटो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रांचेस है, बीटेक ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर प्रोडक्शन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब बीटेक ब्रांचेस है। अंडर ग्रेजुएट यानी डिप्लोमा के बाद आपको जो बीटेक करना होता है या BE करना होता है, तो ये सब ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मास्टर करना है तो मास्टर में हमारे पास और 8 ब्रांचेस है। स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल, मशीन डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। दूसरा एक PDDC है, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, जो ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर्स कंपनी में काम कर रहे हैं यानी सराउंडिंग नियर बाई एरिया में 25 किलोमीटर्स इन आनंद, तो उनको एक पार्ट टाइम डिप्लोमा से डिग्री इंजीनियरिंग करने का एक मौका भी मिलता है, तो वो बोलते हैं PDDC। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉसिबल है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए है, आप BVM की वेबसाइट पे जाके भी ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, और यहाँ पे ईमेल ID और वेबसाइट मेंशन किया है। आपकी क्वेरी हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल करके भी आप एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। BVM 1948 में बना हुआ कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। कहूँगा गुजरात में जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना वो BVM इंजीनियरिंग कॉलेज है। दैट इज एस्टैब्लिश, ओपनिंग सेरेमनी वाज 14 जून 1948। जो घनश्याम दास जी बिरला उन्होंने डोनेट किए थे अमाउंट, और उससे जाके BVM कॉलेज बना, और स्टार्टिंग हुआ 1948 से, और अभी तक 21,000 BVM इंजीनियर्स बाहर आ चुके हैं। 21,000 बहुत बड़ा नंबर है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, आपको BVM के इंजीनियर्स जरूर से मिलेंगे। हमारा विजन ही यही है कि प्रोड्यूस ग्लोबली एम्प्लॉयबल इनोवेटिव इंजीनियर्स विद कोर वैल्यूज। चेयरमैन भी हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे भी टेक्नोलॉजी चल रहा है, उस हिसाब से हमारे इंजीनियर्स तैयार हो। हमें पूरा सपोर्ट चारों तरफ विद्यामंडल से मिलता है। प्रिंसिपल सर ने पूरा यहाँ पे मैसेज दिया है। यही जो बुकलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप BVM की वेबसाइट से भी ये बुकलेट, एडमिशन बुकलेट 2020 देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अब फटाफट से आपको ब्रांचेस दिखा देता हूँ और इनटेक कितनी है वो भी दिखा देता हूँ। पहला सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट ग्रांट इन एड ब्रांच है, 120 उसकी इनटेक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो भी ग्रांट इन एड है, यानी गवर्नमेंट ब्रांच होता है। 90% गवर्नमेंट होता है और 10% उसमें सेल्फ फाइनेंस कंपोनेंट रहता है। बीटेक इन कंप्यूटर 60 उसकी इनटेक है। इलेक्ट्रिकल में भी 60 इनटेक है, वो भी ग्रांट इन एड है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इट इज़ ऑल्सो ग्रांट इन एड, 75 उसकी इनटेक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 + 30, यानी 90 उसकी गवर्नमेंट है और 30 उसकी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। तो ये हुई हमारी गवर्नमेंट प्लस सेल्फ फाइनेंस ब्रांच। बाकी प्योरली जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस है, प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस दोनों है। प्योरली सेल्फ फाइनेंस ब्रांच बात करूँ तो IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 60 इनटेक है।
ईसी इंजीनियरिंग जिसमें भी 60 इंटेक है। अभी जो आपको जो भी बातें एक्सप्लेन की डॉक्टर भार्गव गौरडिया इज HOD ऑफ ईसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। PDDC, हाँ मैकेनिकल में मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो PDDC एक ब्रांच बोलते हैं, पार्ट टाइम डिप्लोमा टू डिग्री कोर्स, उसकी 30 सीट्स है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है कि कितने इनटेक है, कितने मैनेजमेंट कोटा है। ये जो है ये बी यानी आप अगर 12वीं कक्षा खत्म करने के बाद जो आपको एडमिशन लेना है उसके लिए ये ज़रूरी है। डिप्लोमा टू डिग्री के लिए अलग से उसके क्वाटा रहते हैं, यानी आप डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में एंटर होते हैं यानी 2nd ईयर में, तो उसके लिए अलग क्वाटा है। ACPC पे आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। अब मास्टर की बात करें फटाफट से, ये मैं 10% सीट्स है। या 10% सीट। अब देखिए मास्टर अगर एमटेक आपको करना है, डिप्लोमा खत्म किया, डिग्री खत्म किया और यू आर प्लानिंग फॉर मास्टर, तब आपको देखना है तो यहाँ पे BVM में सिविल इंजीनियर से अगर आप मास्टर खत्म करते हो, बैचलर खत्म करते हो, तो मास्टर में आपको चांस मिलेगा एनवायरनमेंट में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसके जो सीट्स है 18 सीट एनवायरमेंटल में है, कंस्ट्रक्शन में 18 है, स्ट्रक्चर में भी 18 है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसमें 18। ये सभी जो मास्टर की ब्रांचेस है वो सभी सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस है, वो कोई भी गवर्नमेंट ब्रांचेस नहीं है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, उसमें भी 18 इंटेक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें 25 इंटेक है, वो भी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें 18 इंटेक है। एंड मशीन डिज़ाइन वो भी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। मैकेनिकल के बाद आप मशीन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल के बाद आप मशीन डिज़ाइन में आप काम कर सकते हैं। तो ये है आपके एमटेक के ब्रांचेस, जो सभी ब्रांचेस सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस है। अब थोड़ी बात हम BVM के मेजर अचीवमेंट के बारे में बात करें तो पहले जैसे शुरुआत में बताया वो गुजरात की फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एस्टैब्लिश इन 1948। NIRF रैंकिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो MHRD ने इंडिया लेवल पे जो डिसाइड किया है कि कौन सी अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट है, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑफ नेशनल लेवल रैंक, टॉप 300 में हमारा इंस्टीट्यूट आ रहा है। गुजरात में ये फर्स्ट है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट 300 टॉप 300 में उसका नाम है। इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी BVM के पास है। एक है भारतीय विद्या भवन नेशन है, वो 2019 लास्ट ईयर ही हमने ये नेशनल अवार्ड लिया था। फिर AAA रैंकिंग जो है NPTEL जो ऑनलाइन मूक कोर्सेज चलते हैं उसमें हमारा टॉप AAA रैंकिंग है। BVM इज हैविंग ए टॉप रैंकिंग इन दैट ऑल्सो। ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन से एक्रेडिएटेड है। ये एक्रेडिएशन जैसे कि स्कूल में इंस्पेक्शन होता है, ऐसे ही एक्रेडिएशन एक चीज़ है जो हमें इंस्टीट्यूट की क्वालिटी कैसी है वो गवर्नमेंट एजेंसीज आके इंस्पेक्शन करके पूरे पॉइंट वाइज डिसाइड करके एक्रेडिएशन देती है। तो वो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके कोचिंग यहाँ पे इन हाउस कराते हैं, यानी गेट है, कैट है, GRE, टॉकवेल, IITS। काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है इसमें स्टूडेंट्स का। अमूल वोल्केनो करके कल्चरल इवेंट होता है, काफ़ी सालों से BVM उसमें चैम्पियन रह रहा है, अभी तक 8 टाइम चैम्पियन हो चुका है। और जो यूथ फेस्टिवल जो यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे यूथ फेस्टिवल करते हैं, बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट होता है, उसमें भी काफ़ी बार BVM टॉप 2 टॉप 3 में ही रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसीज़ जो SSIP मॉडल है, जिसमें स्टार्टअप स्टूडेंट को अगर कुछ प्रोटोटाइप बनाना है, कुछ अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उनको यहाँ पे से फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। उनको अपनी जेब में से कुछ भी खर्चा नहीं करना है। अभी तक BVM के स्टूडेंट्स को 15 लाख अमाउंट दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको यानी जैसे सपोज आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताइए, हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। 85 जितने इंडस्ट्री के साथ हमारे MOU है। और फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट को अगर बाहर एक्सपीरियंस करना है, कुछ स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस करना है, यहाँ पे 7 फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है। सो 85 मोर देन 85 रेप्यूटेड इंडस्ट्री, 7 फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो प्लेसमेंट में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उनके साथ सारे अच्छा कांटेक्ट बनाए रखते हैं। हमारे जो प्राइड है, और BVM प्राइड अगर बोले तो AM नायक, श्री AM नायक जो BVM के एलुमनस है, उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2019 में। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और जो हमारा एलुमिनी नेटवर्क है, जो अल्मा साइन www.bvmalumni.ac.in,
वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलुमनी नेटवर्क, बहुत ही पुराना एलुमनी नेटवर्क है। बहुत सारे इंजीनियर्स उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आपको बीवीएम से जितना भी सपोर्ट चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट यहाँ से इंजीनियर बन चुके हैं, आपको हमेशा बीवीएम से सपोर्ट मिलता रहेगा। ऑलरेडी बीवीएम ने वर्ल्ड बैंक से काफ़ी बड़ा अमाउंट ग्रांट मिला हुआ है। करोड्स ऑफ अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू बाय वर्ल्ड बैंक अंडर TQIP2 TQIP3 प्रोजेक्ट्स। ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आपको ग्लिम्सिस देखने तो मिल रही है, नेशनल अवार्ड्स की ग्लिम्सिस है, NPTEL AAA रैंकिंग है बीवीएम का। अगर अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सिर्फ टीचिंग नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, ओनली टीचिंग नहीं, क्लासरूम टीचिंग नहीं, क्लासरूम के बाहर क्या ट्रेनिंग है, क्या रिसर्च है, क्या इनोवेशन है, सभी के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। तो हमारे पास परम सावक, जो हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, बीवीएम में अवेलेबल है। एक्सेलेंस सेंटर जो कंपनी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं, कंपनी के लोग आके पढ़ाते हैं, कंपनी के लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए IoT इंफ्रास्ट्रक्चर SLS नेबुलो के द्वारा एक बहुत ही अच्छा एक्सेलेंस सेंटर है। एंटेना रिलेटेड अगर रिसर्च करना है, यहाँ पे नेशनल लेवल पे रिसर्च सेंटर है, पूरे इंडिया में नहीं है ऐसे एंटेना के लैब यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। पाइल टेस्टिंग, सिविल रिलेटेड पाइल टेस्टिंग जो बोलते हैं, ब्रिज डिज़ाइन एंड ऑल, उसमें जो काम लगता है उसके टेस्टिंग के रिलेटेड यहाँ पे एक्सेलेंस सेंटर है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के लिए पूरी लैंग्वेज लैब तैयार की गई है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज में, कैसे बोलेंगे बाहर जाके, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, दूसरे फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, बहुत सारे स्किल यहाँ पे डेवलप होते हैं। स्टूडेंट को यहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, एकेडमिक सर्टिफिकेट कोर्सेज, रेड हैट बहुत बड़ा नाम है, आप ऑलरेडी जानते हो। AWS, अमेजोन वो हैंडल करते हैं। सभी के यहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलते रहते हैं। फंडिंग मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, उसके अंडर में आपको फंडिंग मिलती है। पैटर्न ड्राफ्टिंग, अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया है, यानी कुछ इनोवेटिव डिज़ाइन है, उसका पैटर्न करवाना है, तो भी यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रिक प्रैक्टिस है यहाँ पे, देखे गेट के इन हाउस क्लास है, NSS NCC एक्टिविटीज़ है, हर सैटरडे को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। वो लर्निंग बियॉन्ड सिलेबस होता है, यानी आप क्लास में पढ़ते हो, उससे अलावा और क्या चीज़ें जानने को, वो सभी चीज़ें आपको एवरी वीकेंड्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चालू रहती है। टेक्निकल फेस्टिवल्स, उड़ान, जीनेसिस, नो हाउ, प्लेसमेंट रिलेटेड टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस यहाँ पे थ्रू आउट ईयर चलता है। कुरुक्षेत्र, क्षितिज, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। BVM CVM स्पोर्ट्स फेस्टिवल। लाइब्रेरी एक्टिविटीज़, अगर लिटरेरी एक्टिविटीज़ बोलूँ तो BVM टॉक्स है। एनुअल मैगजीन विश्वकर्मा एनुअली प्रोड्यूस होता है। अल्फाज करके एक हमारा इवेंट है जो लिटरेरी इवेंट है, वो भी हम एनुअली करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेशन आर देयर। स्टूडेंट को फुल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए हम मोटिवेट करते हैं। उनको इंटर्नशिप करना है या फिर फुल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं। मूक प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं। सभी फैकल्टी एक इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, तो इंडस्ट्री का फुल सपोर्ट है उनको। जो भी उनकी करिकुलर डेवलपमेंट या जो भी एकेडमिक रिलेटेड डेवलपमेंट है, सपोर्ट है, वो सभी हमें इंडस्ट्री से मिल जाते हैं। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, ऑल द सॉफ्ट स्किल्स आर गोइंग टू बी डेवलप, यहाँ पे वो सभी सपोर्ट मिलते हैं। इंडस्ट्री विजिट की जाती है, इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, रेगुलर विजिट चलती है। रेगुलर करियर काउंसलिंग होता है। स्टूडेंट्स, यानी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता है तो उनके पेरेंट्स के साथ उनके सभी फैकल्टी, एक फैकल्टी के अंदर करीबन 20 स्टूडेंट होते हैं जो उनका पर्सनल फैकल्टी उनके ऊपर पर्सनल, यानी उनका ध्यान रखते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एकेडमिक हो या उनके पेरेंट्स के साथ भी कंटिन्यूस टच में रहते हैं। टॉक, सेमिनार, वर्कशॉप, यहाँ पे ज़्यादातर ये सभी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज होती रहती है। ये आप देख सकते हैं ग्लिम्सिस से, जब मैं लेबोरेटरी दिखा रहा हूँ दिस साइड, ये लेबोरेटरी है, हमारा वर्कशॉप है, काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है। ये सब रिसर्च लेबोरेटरी, केमिकल रिलेटेड, एनवायरमेंट लेबोरेटरी यहाँ पे दिखाई गई है। काफ़ी सारी कंपनीज विजिट करती है। प्लेसमेंट रिलेटेड काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सभी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट का चांस मिलता है, और अगर प्लेसमेंट नहीं ले रहे तो स्टूडेंट ज़्यादातर हायर स्टडी के लिए जाते हैं, या फिर वो अपना खुद का कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो वो प्लेसमेंट में नहीं जाते। तो इतने सारे कंपनीज, इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ही दिखाए हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, आप BVM के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। ये 19-20 का रिकॉर्ड है, अभी और नंबर बढ़ चुका है। यहाँ पे ये जो नंबर है ये तीन महीने पहले का है,
ये नंबर काफ़ी और बढ़ चुका है। कंटिन्यूस प्लेसमेंट मॉनिटरिंग और प्लेसमेंट ट्रेनिंग चलती रहती है। ऑलमोस्ट 90% प्लस स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस और गेटिंग गोइंग फॉर हायर स्टडी और दे आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। यहाँ पे देखिए काफ़ी बीवीएम में फैकल्टी जो है, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, नंबर दिखाया गया है। कितने ग्रांट्स है, 17 करोड़ ग्रांट बाय वर्ल्ड बैंक, 1.2 करोड़ ग्रांट बाय गुजरात गवर्नमेंट। स्कॉलरशिप स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है, सर ने हमें ऑलरेडी बताया था। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, 110 से ज़्यादा तो इंडस्ट्री विजिट डिफाइंड प्रोजेक्ट हुए, 40 से ज़्यादा इंडस्ट्री विजिट हुए। तो ये जो है 19-20 के बारे में, यानी 2019-20 जो एकेडमिक ईयर लास्ट ईयर गया उसके रिलेटेड ये डेटा है। ये जो क्लब्स है यहाँ पे इंटरनल जो एक्टिविटीज़ चलती है उसके रिलेटेड टेक्निकल क्लब्स होते हैं, वो है IEEE, IST, CSI, IE, रोबोटिक्स है, फिर सी इंडिया, देन BIC, IIC, IIIC। ये सभी क्लब्स के अंडर में बहुत सारे BVM में एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस चलती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, ऑडिटोरियम की बात करें, डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, स्टूडेंट सेंट्रिक सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी है, एक बहुत ही बड़ी हॉस्टल यहाँ पे हमारी बन रही है, उसमें भी सारी फैसिलिटी है। अंदर डाइनिंग फैसिलिटी के साथ सभी 2 ऑक्यूपेंसी, 3 ऑक्यूपेंसी, वो भी हॉस्टल हमारी डेवलप हो रही है। लाइब्रेरी में मोर देन 60,000 प्लस बुक्स अवेलेबल है, प्रिंट मटेरियल, ई जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, वो सभी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। यानी अगर ग्लोबली बोले तो ग्लोबली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन कर पाए ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये जस्ट थोड़े से ग्लिम्सेस हैं और थोड़े से और ग्लिम्सेस आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो भी प्रोग्राम और इवेंट चलते हैं इससे ज़्यादा आपको हाईलाइट BVM की वेबसाइट पे ग्लिम्सेस में देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ घनश्याम राठौड़। आई होप मैंने BVM के बारे में आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी होगी और आप इससे संतुष्ट होंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू BVM से जुड़ने के लिए, BVM के वेबिनार से जुड़ने के लिए। अंत में मैं चारुतर विद्या मंडल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें ये मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और उनके सारे फैकल्टी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, तो उन सभी का शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ ऐसे इस वेबिनार से जुड़े और काफ़ी अच्छा अपने माहितगार हुए आप, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और कुछ अंत में अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे है। ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी BVM की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। आप अपना ये सेशन बंद कर सकते हैं। थैंक यू।